بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قانون مفرد اعضاء کے طلباء اکرام اور طلباء و طالبات، قانون مفرد اعضاء کی تربیت کی کلاس کا آج دوسرا یوم ہے۔ کل ہم نے کلاس میں مبادیات طب کے حوالے سے کچھ بات کی، علاج میں غذا کے کچھ اصول بتائے اور ساتھ میں نبض کو جانچنے یا پکڑنے کا ایک طریقہ سکھایا۔ آج ہم انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے قانون مفرد اعضاء کی پہل تعریف کریں گے۔ قانون مفرد اعضاء میں تعریف اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کی صحیح ماہیت کا ان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں تعریف کے اعتبار سے قانون مفرد اعضاء کو صحیح تشخیص کرنے کا، علامات اور امراض کی تقسیم کا اور درست اور بے ضرر علاج تجویز کرنے کا ایک نمایاں پہلو قانون مفرد اعضاء میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے طبیب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ صحیح تشخیص اور درست علاج کی کسوٹی ہی ہمارے پاس قانون مفرد اعضاء کی شکل میں موجود ہے۔ آج ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں کئی طریقے کے علاج اور ماہیت الامراض پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آیورویدک اور یونانی طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے۔ ایلوپیتھک کی کئی شاخیں ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ آدمی کا نفسیاتی امراض ہوتے ہیں تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ روح بیمار ہے تو آدمی بیمار ہے، کچھ کہتی ہیں کہ جراثیم چھریاں ہیں اور پھر ہم بیمار ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوشوں اور اخلاق کی بیماریوں کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کا طبیب جب تشخیص پر عبور حاصل کرتا ہے، وہ جب اس کو صحیح سے جان جاتا ہے تو یہ سب کے سب پہلو اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ مریض کی نفسانی معاملات کو بھی جانتا ہے، اس کے اخلاق اور دوشوں کی خرابی کو بھی جانتا ہے، اس کے جسم میں اگر کہیں جراثیم کا غلبہ ہو گیا ہے، امیون سسٹم کمزور ہو گیا ہے، قوت مدبرہ بدن کمزور پڑتی جا رہی ہے، اگر اس کو لاحق ہیں بیماریاں روح کی برے اعمال کی وجہ سے، تو یہ سب کے سب قانون مفرد اعضاء کے طبیب کے سامنے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اطباء اکرام، میرے بھائیوں، قانون مفرد اعضاء کو مفرد اعضاء کیوں کہتے ہیں؟ قانون مفرد اعضاء وہ واحد فلسفہ ہے، وہ واحد تھیوری ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ بیماری گوشت میں، پٹھوں میں اور غدود میں ہوتی ہے۔ مرکب اعضاء جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد بھی مفرد ہی ہوتی ہے، کیونکہ مفرد اعضاء کی بافتیں اور بنیادیں مل کر کے مرکب بناتی ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ انسانی جسم کی واحد اکائی حیوانی ذرہ ہے جسے سیل یا خلیہ کہتے ہیں۔ ایک سیل، اس کی انرجی، اس کی ہیٹ اور اس کی فورس اگر بالکل ٹھیک ہے تو وہ سیل بھی بیمار نہیں ہے اور آپ بھی بیمار نہیں ہیں۔ لیکن جب حیاتی ذرہ، حیوانی ذرہ، حیاتی خلیہ یا پھر سیل اپنی رطوبت، اپنی حرارت اور اپنی قوت کے اعتبار سے کہیں پر افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے تو اس کمی کی وجہ سے سب سے پہلے سیل بیمار ہوتا ہے، پھر انجسا یا ٹشو بیمار ہوتا ہے، اس سے پھر اعضاء بیمار ہوتے ہیں، اور اعضاء جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک آرگن سسٹم، ہم جیتے جاتے انسان ہیں جس میں مختلف اعضاء کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنی نظام ہضم، نظام بول اور نظام تنفس اور اسی طرح کے سارے نظاموں کو انہی اعضاء کے باہمی ملنے کی وجہ سے ادا کر پا رہے ہیں۔ تو جناب سامعین، جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ نظریہ مفرد اعضاء کی تھیوری میں 3 عضو رئیس مانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 دل، جو کہ مرکز ہے عضلات کا۔ عضلات دل کے پٹھے، عضلات جس میں ہوا اور خشکی موجود ہوتی ہے، عضلات جس میں 2 نمبر اور 3 نمبر کی تحریکیں آتی ہیں، عضلات جس میں عضلاتی اعصابی یعنی 2 نمبر اور عضلاتی غدی یعنی 3 نمبر تحریکیں آتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ 2 نمبر کی تحریک ہمارے پاس ارادی عضلات ہوتے ہیں اور 3 نمبر کی تحریک
हमारे पास गैर इरादी उजलात होते हैं। सामीन कराम, इसके अलावा दूसरा उज़्व रईस जिगर है, और जिगर का मरकज़ गुदुद है, जिसका मरकज़ हरारत है, गर्मी है, सुफरा है। इसको भी दो तहरीकों में दो खादम इसके हैं। एक है गुदुद जाज़बा, जिसे हम आम तिब्बी ज़ुबान में 4 नंबर खुश्क, गर्म खुश्क या गुद्दी उजलाती तहरीक कहते हैं। नंबर 5 गुदुद नाकला, जिसे 5 नंबर भी और गुद्दी आसाबी तहरीक भी कहते हैं, जिसे कुछ लोग गर्म तर कहते हैं और हम उसे रोशन तर कह रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी की एक किस्म है रोशनी। इसकी मिसाल है कि कुछ लोगों को रोशनी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को रोशनी चुभती है। इंसानी जिस्म का एक बहुत बड़ा राज है, इस कायनात की कैफियत का बहुत बड़ा राज है। जब हम उमूर तबिया पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कैफियत और मिजाज में ये चीज़ें भी इंशाल्लाह समझाऊंगी। आज ये याद रखिए कि जिगर गुदुद जाज़बा और गुदुद नाकला से मिलकर बना है। गुदुद का ये मरकज़ है, उज़्व रईस है, और इसमें गर्म खुश्क और गर्म तर दो तारीखें मिलती हैं, जिन्हें 4 नंबर और 5 नंबर कहते हैं। उसके अलावा दिमाग उज़्व रईस है, जिसके 2 खादम हैं। एक है हुक्म रसा असाब और एक है पैगाम रसा असाब। जो पैगाम रसा असाब है वो 6 नंबर तहरीक है, जिसे आसाबी गुद्दी भी कहते हैं, जिसे तर गरम भी कहते हैं, और आसाबी उजलाती जिसे सर्द खुश्क या सर्द तर भी कहते हैं। तो सामीन कराम, हुक्म रसा असाब और ख़बर रसा असाब में जो कुछ भी हो रहा है वो दिमाग देख रहा है, और जो दिल देख रहा है वो आपके इरादी और गैर इरादी उजलात देख रहा है। जिगर आपके जिस्म के गुदूद जाज़बा और गुदूद नाकला देख रहा है। कानून मुफरद अज़ा में 6 तारीखों को कल हमने जिस्म के हिस्सों के एतबार से और आज अंदरूनी अज़ा के एतबार से बाहम फंक्शन इसका आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नब्ज़ के हवाले से। कल मैंने आपको समझाया था कि नब्ज़ जो है जांचने का असूल ही हमें नहीं आता। तबीब मेरा नब्ज़ रखता है, हाथ ऐसे करके, तबीब नब्ज़ रखता है इस तरह करके, 3 उंगलियां रखता है, 1 उंगली उठा लेता है, पोरों का दबाव मुकम्मल नहीं होता है, उसको नब्ज़ देखनी नहीं आ रही है, पकड़नी ही नहीं आ रही है, वो किस तरह तशख़ीस करेगा। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसका तरीका भी समझाऊं, बाकायदा आपको नब्ज़ के मकामात भी बताएं, कानून मुफरद अज़ा में कौन सी नब्ज़ किस मकाम पर मिलती है इस बारे में भी आपको बताएं, ताकि आप लोगों का कल का सबक भी रिवीजन हो जाए और आपको एक बेहतर तौर पर आज के नब्ज़ के हवाले से एक मैसेज मिल सके। पहली बात तो ये याद रखें कि मरीज़ को बाज़ तबीब ऐसे होते हैं बैठे और मरीज़ को अपने साथ यहाँ बिठा करके उसकी नब्ज़ देखते हैं। ऐसा नहीं करना होता। मरीज़ को बिल्कुल अपने सामने बिठाइए, अपनी कुर्सी को घुमा लीजिए, मरीज़ के बिल्कुल सामने बैठ जाइए। मरीज़ का हाथ, दाहिना हाथ जिस्म के दिल के बिल्कुल सामने कर दीजिए कि उसकी ये हथेली उसके दिल के पास हो। मरीज़ बाजुकात ऐसे मुट्ठी खींच लेता है, ये ठीक नहीं है। मरीज़ की मुट्ठी ना भिजवाएं, उसे कहें भाई हाथ को ढीला कर दो, फिर वो बिल्कुल अकड़ा लेता है, ऐसा करना भी गलत है। मरीज़ को अकड़ने भी ना दें हाथ, उसे कहें अपना हाथ ढीला छोड़ दो। जब उसने हाथ ढीला छोड़ दिया, अगर तो मोटा ताज़ा आदमी है, सही उसकी जिल्द पर गोश्त है, बेशक आप अंगूठा उठा लें। अगर कोई बहुत ज़ईफ़ आदमी है, कमज़ोर है, खाल पतली हड्डी पतली, तो बेशक इस अंगूठे को दबाएं। मरीज़ की जब तबीब नब्ज़ देखेगा तो यहाँ पर उसकी हड्डी है जिसे टटोलना है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से आपको आज समझा पाऊँ। ये मेरे पास समझाने के लिए एक नब्ज़ आपको मैं ये दिखा रही हूँ। ये एक बच्चा है, उसका ये हाथ है। मेरे पास सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बाजू ऐसे रखी है, वरना जैसे कहा कि बिल्कुल मुकाबले में अपने मरीज़ को बिठाइए। आपने इस मरीज़ को, आपके पास मरीज़ आया, आपने उसका हाथ देखा, उसको कहा कि भाई हाथ ढीला कर दो, ना सख्त करो ना ऐसे मुट्ठी दीजिए, ऐसे करवा दिया और इसको हल्का सा उठा दिया। मरीज़ की हड्डी को टटोलें। इस हड्डी पे ये गुट है, इसमें यहाँ एक उभार होता है।
हड्डी जब देखें तो जहाँ जो उभार शुरू हो रहा है, अब मैं ये यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर उभार शुरू हो गया है। हड्डी का ये जोड़ है और जोड़ का ये उभार है। इस उभार के मकाम पर मेरी शहादत की उंगली है। अब मैंने ये चारों उंगलियां बराबर की जो कल पेन की मदद से आपको बताई थी, और यहाँ मैंने ये रख ली। मैंने मरीज की कलाई पर अपनी चारों उंगलियां बराबर रख ली और इस जोड़ की उभार की जगह पर रख ली। ऐसा नहीं है कि नब्ज़ यहाँ देखें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जड़ में नब्ज़ देखें, यहाँ नब्ज़ देखें। फिर आप समझिए जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो है नब्ज़ के मकाम। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि नब्ज़ के 3 मकाम हैं, मगर हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया और जो कि सही और 100% अमली तौर पर ये बात थी, बड़ा आसान हो गया तशख़ीस करना, नब्ज़ देखना। नब्ज़ के 4 मकामात हैं। नंबर 1 पर बिल्कुल शर्फ में आपने मरीज़ की कलाई पर हाथ रखा। कोई दबाव, आपको देख रहे होंगे कोई दबाव नहीं है, सिर्फ मैंने छुआ है। अगर मुझे इस मकाम पर नब्ज़ मिल गई तो ये मेरी पहले मकाम पर शर्फ पे नब्ज़ें मिलती हैं। आप लोग याद रखिए कि कानून मुफ़रिद अज़ा की आसाबी उज़लाती, उज़लाती आसाबी और उज़लाती गुद्दी 3 तहरीकें इसी मकाम पर मिलती हैं। उसके बाद मिसाल दे रही हूँ कि यहाँ मुझे नब्ज़ नहीं मिली। एक भाई ने सवाल किया कि पहले मकाम पर नब्ज़ हल्की है, तो मैंने और दबाया तो तेज़ हो गई, तो मैं किसको समझूँ? यहाँ ये बात समझ लें कि जिस मकाम पर आपको नब्ज़ मिलती है फिर और नीचे नहीं जाते, जहाँ मिल गई नब्ज़ बस वो वहीं है। आपने ऐसे देखा नब्ज़ नहीं है, मैंने इसको हल्का दबाव दिया। हल्का दबाव से मुराद ये होगा कि बाज़ लोग बहुत ज़ोर से पहला ही मकाम ज़ोर से रखते हैं, वो कभी भी सही तशख़ीस नहीं कर पाते। शुरू में बिल्कुल टच करें, नहीं महसूस हो रही, हल्का दबाव दें। मिसाल लें कि इस कलाई को मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ आपके सामने। मिसाल के तौर पर ये पहला मकाम है जिसे मैंने बिल्कुल छुआ है, ये इसका दरमियान है और ये इसका बिल्कुल हड्डी के साथ है। मैंने इस दरमियान से हल्का दबाव दिया, दरमियान से ऊपर हुआ भी। यहाँ मुझे मिसाल दे रही हूँ कि नब्ज़ नहीं मिली। अगर यहाँ नब्ज़ मिल गई दूसरे मकाम पर तो ये कानून मुफ़रिद अज़ा की 4 नंबर की नब्ज़ होती है। अगर इस मकाम पर भी नब्ज़ नहीं मिली, मैंने फिर इसको दबाया। आप देख रहे होंगे कि मैंने तीसरे दरमियान के मकाम से और दबा दिया। तरीका वही है, ऐसे ही रखा। जब मैंने दबाया तो अब इस दरमियान से नीचे की जानिब मुझे नब्ज़, मिसाल दे रही हूँ कि यहाँ मिली आपको, तो ये 5 नंबर की नब्ज़ हुई तीसरे मकाम पर। और अगर यहाँ भी नब्ज़ बिलफर्ज नहीं मिलती और आपने इस नब्ज़ को बिल्कुल हड्डी तक दबा दिया, आपको महसूस हो रहा है कि अब हड्डी लग गई है, तो इस मकाम पर जो नब्ज़ आपको मिलती है ये नब्ज़ 6 नंबर की तहरीक की होती है। दोबारा याद दहानी आपको करा रही हूँ, ये नब्ज़ है। मरीज़ का हाथ ऐसे सीधा कर लें, उसे कहें भाई ढीला रखे, ऐसे कर लें। कमज़ोर मरीज़ है तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐसे करके यहाँ देखा, यहाँ हड्डी का उभार है, चारों पोरे बराबर किए, टच करके देखा, शर्फ में मुझे नब्ज़ नहीं मिली, मैंने दबाया, ये 4 नंबर का मकाम है, यहाँ मुझे नब्ज़ मिल गई तो ठीक है, वरना मैंने और दबाया, इसी मकाम पर दबाया, दबाव डाला, नब्ज़ यहाँ मिली तो ये 5 नंबर, अगर यहाँ भी नहीं मिली तो बिल्कुल हड्डी के साथ लगा दिया, यहाँ नब्ज़ मिलेगी तो ये 6 नंबर की नब्ज़ है। आज इतना ही याद करें, फिर जब नब्ज़ के अजनास आपको पढ़ाएंगे फिर बताएंगे कि पहले नंबर की नब्ज़ कितने पोरे पर, दूसरे नंबर की नब्ज़ कितने पोरे पर, और कौन कितना तवील है, कितना अरीज़ है, और फिर इसकी अलग अलग मखसूसियात हैं, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। नब्ज़ें सफ़र करती हैं तो वो भी बताएंगे। नब्ज़ों के सफ़र के दौरान जो जो अलामात आपको मिलेंगी, जो आप तबीब होने की हैसियत से मरीज़ को बताएंगे, और वो मरीज़ आपकी ये बात सुन के अश कर उठेगा कि जी हकीम साहब ने तो ऐसे ही बता दिया मुझे। इंशाल्लाह वो राज भी आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए बस नब्ज़ के हवाले से इतना ही। दूसरा हमारा मौजू है ग़ज़ा के एतबार से। कल मैंने आपको बताया कि ग़ज़ा जो है ताफ़ुन कब हुई, जब हमने ग़ज़ा खाई थी, वो हमारे मैदे में गई थी, हज़म होने में 3 घंटे लगे, वो फिर छोटी आंत में पहुंची, वहाँ कम से कम 4 घंटे लगे, रतूबात का छिड़काव हुआ, वहाँ से
आगे भी 5 घंटे, और फिर खून बनने में भी और खून जज़ब होने में भी इस तरह 15-16 घंटे का फ़र्क है। तो अतीबा इकराम का मुत्तफ़िक राय ये है कि कम अज़ कम जब तक आंतों, छोटी आंत से बड़ी आंत में खुराक शिफ्ट नहीं हो रही, जब तक रतूबात का छिड़काव उसमें हो रहा है, उस वक्त तक कोई खुराक ना खाई जाए। तो मैदे में 3 घंटे खुराक थी, छोटी आंत में 4 घंटे थी, तो कम अज़ कम जो दरमियानी वक्फा है वो 7 घंटे का है। 6-7 घंटे मरीज़ या सेहतमंद आदमी भी कुछ ना खाए तो वो सेहतमंद रहेगा। अगर वो बार बार बसियार खोरी का आदी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार खाता है, उसने अपनी सेहत को ख़राब कर लेना है। बीमार है तो वो सेहत याब नहीं होगा। एक भाई कमेंट में पूछ रहे थे कि हमें ये भी बता दें कि हाजमे के दौरान कौन कौन सी रतूबात और कौन कौन से उज़्व रईस, क्योंकि मैदा निज़ाम हज़म का सबसे बड़ा और फैला हुआ एक हिस्सा है, तो इसमें कौन कौन सी रतूबतें शरीक होती हैं, इसके बारे में भी बता दिया जाए। तो बिल्कुल ठीक सवाल है, हम इसका जवाब दिए देते हैं। जब खुराक आपके मैदे में पहुंचती है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि बहुत तेज़ाबी और एसिडिक होता है। वो खुराक को फाड़ देता है। वो खुराक फाड़ने के बाद वो बारीक होकर पतली हो जाती है कि छोटी छोटी नसों में से वो गुजर सके, बिल्कुल रकीक हो जाती है, पतली हो जाती है। ये यहाँ पर तेज़ाबियत है। आप जानते हैं कि तेज़ाबियत का छिड़काव मैदे के इस मकाम पर होगा। अब ये इतना तेज़ाबी महलूल है, कीमियाई महलूल है मैदे में, कि जब ये थोड़ा थोड़ा करके छोटी आंत में जाता है, अगर ये इतना ही तेज़ाबी रह कर जाएगा तो छोटी आंत में ज़ख्म हो सकते हैं। तो मेरे अल्लाह ने यहाँ पर लबलबे की जिम्मेदारी लगाई है कि वो अपनी रतूबत, जो कि अल्कली एसिड है, वो भी अल्कली, आप जानते हैं कि अल्कली भी एक एसिड होता है, बहुत तेज़ तरशा नमकियात या खारपन उस पर खारिज करता है। तो वो जो खट्टापन था, तेज़ाबियत थी, वो नमक के मिलने से कुछ कम हो गया और खुराक अब यहाँ भी मज़ीद हज़म हो रही है। जैसे कि ग्लूकोज और नशास्तादार और बहुत हैवी किस्म की, हम आपको आगे बताएंगे इलाज बिल-ग़िज़ा में कि कसीफ और लतीफ़ किस्म की और साले और गलीज़ किस्म की कैमवस क्या हैं, वो खुराक की ग़िज़ाएँ कितना देर लगाती हैं हज़म होने में। तो वो खुराकें वहाँ हज़म होती हैं। खुराक जब बड़ी आंत में पहुँची, आप साबिर साहब ने फरमाया कि पित्ता सफ़रा को हुदूद जाज़बा के ज़रिए जज़ब करता है और फिर उसको बड़ी आंत में खारिज कर देता है हुदूद नाक़ला के फ़ेल के ज़रिए। तो यहाँ पर पित्ता अपने रतूबात का इखराज करता है और खुराक जो भी हज़म होने वाली होती है वो मज़ीद हज़म हो जाती है और बाद में सारा का सारा फुजला आगे मुंतकिल हो जाता है और ये खुराक जिगर तक पहुँचकर मज़ीद हज़म होने के मराहिल से गुजरती है। जिगर इस खुराक को पकाता है। तो जनाब अली, ये कल के सवाल का मौजू था। आज जो ग़िज़ा के हवाले से बात कर रही हैं वो ये कि हमने ये तो बता दिया कि 3 से 4 घंटे, 7 घंटे का ग़िज़ाओं का आपस में वक्फ़ा होना चाहिए, लेकिन ग़िज़ाओं के वक्फ़े के बाद भी अगर आपको भूख ना लगे, आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत है कि नहीं। इसका सही तसव्वुर भी साबिर साहब ने हमें दिया है। साबिर साहब फरमाते हैं कि ग़िज़ा की सही ज़रूरत का तसव्वुर भूख से होता है, कि जब भूख पैदा हो गई तो आपके जिस्म ने तलब की आपसे खाने की, लेकिन उन्होंने बताया कि सही भूख और गलत और हकीकी और झूठी काज़िब भूख का भी फ़र्क होता है। हकीकी भूख की पहचान ये होगी कि जैसे एक रोज़ेदार को अफ्तार के वक्त शदीद भूख लगी होती है, उसका जिस्म हल्का गर्म होता है, उसको खाने की शदीद तलब हो रही होती है, उसके जिस्म में एक जज्बा पैदा होता है कि आज तो मैंने खूब खाना खाना है, जी भर के खाना है, अगर मेरी पसंद की चीज़ें होगी तो भी, अगर ना हुई तो भी, वो इस ख्वाहिश को छोड़कर बस खाने की तलब करता है क्योंकि शदीद भूख लग रही होती है। जिस्म हल्का हल्का काँप रहा होता है, हल्की हल्की उसमें हरारत होती है, ख़ास करके कान की भूख गर्म हो रही होती है। तो ये सही भूख का तसव्वुर है। तो अगर 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद भी आपको भूख नहीं लग रही तो फिर आपके जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी शख्स को इस वक्फे में 7 घंटे के वक्फे में भी, उससे पहले भी अगर उसको कमज़ोरी महसूस होती है तो आप समझें कि वो बीमार है, उसको बीमारी समझें, उसको भूख ना समझें। किसी को भी भूख नहीं लगती इतनी जल्दी, क्योंकि उसकी ग़िज़ा का हज़म होकर जुज़्व बदन होने के लिए मामलात हैं, उसके अंदर वो तलब ही पैदा नहीं होती। दूसरा साबिर साहब ने फरमाया कि हमें शदीद भूख पर खाना चाहिए
جب بہت زیادہ کھانے کی طلب ہو تب کھانا چاہیے، مگر بالکل پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ معدے اور آنتوں کو جگہ ہی نہ ملے کہ وہ اپنی حرکت کر سکے، نقل و حرکت کرنے کا ان کو گنجائش ہی نہ ہو۔ تو پانی، خوراک اور ہوا کی گنجائش آپ نے اپنے پیٹ میں چھوڑنی ہے۔ جب فل پیٹ ابھی نہ بھرے تو غذا سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ خوراک کا تعین بہت ضروری ہے۔ صابر صاحب نے یہاں جو ہمارے استاد ایک بات کرتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب کرے، وہ کہتے ہیں کہ جس تحریک کی دوا دو اسی تحریک کی غذا دو۔ ایسا نہ کرو کہ صرف اعصابی غذائیں بند کر کے دونوں غذائیں کھول دو۔ صابر صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر، اس کو پڑھیے گا جا کر ضرورت غذا میں، کہ جس عضو کی بیماری ہے اسی کے مطابق آپ نے اس کو غذا دینی ہے، کیونکہ جگر کی غذائیں الگ ہیں، دل کی غذائیں الگ ہیں، اور دماغ کو تقویت دینے کی غذائیں الگ ہیں۔ تو آپ کیسے پھر کسی بھی مریض کی صرف اعصابی غذائیں شروع کرا کر اور اس ہاتھ میں عضلاتی غذائیں شروع کرا کر صرف ایک غذا بند کر دیتے ہیں؟ ہمیں ایک وقت میں جو عضو بیمار ہے اسی کو تقویت دینے کی غذائیں دینی ہے، تو ہمارا طریقہ علاج بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہم لوگ اپنے مریضوں میں 100% یقینی کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔